what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is IFBB Pro Tuja Hekshete, and this video is on the continuation with the previous video. So हमारा last time का video था कि टिप्स फॉर फैट लॉस. सो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे टिप्स एक्चुअल में नहीं होती, आपको एक प्रोसेस से जाना होता है, आपको समझना चाहिए. आज का वीडियो उसके ही कंटिन्यूएशन में है, हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज. ओके, सो जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था कि कैलोरीज बर्न सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होती. बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से हम कैलोरीज बर्न करते हैं, बट देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक BMR, need, NENAT, thermic effect of food, exercise, activity thermogenesis, eat, all these things. Okay, so हम वन बाय वन मैं वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम आगे जाएंगे. सो व्हाट इज़ BMR? BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, हम अगर कुछ नहीं कर रहे फिर भी हम कैलोरीज बर्न करेंगे. जैसे हम ब्रीदिंग से भी कैलोरीज बर्न करते हैं, डाइजेशन से भी कैलोरीज बर्न करते हैं, ठीक है, रेस्टिंग से भी कैलोरीज बर्न करते हैं. So without doing anything, the processes that happens inside our body also burn the calories. That is BMR. We also burn calories by just even maintaining homeostasis. जैसे homeostasis का meaning है, अगर हम north side जाए तो we start feeling like our body adapts to their climate and we start feeling cold. If a cold person, like if a person who is living in the cold region comes to a humid or hot region, he will start sweating. So हमारी body क्या करती है, homeostasis maintain करती है. ये सब चीज़ में भी calories burn होती है. Major amount of calories are burned through BMR. Okay, so जिसका BMR high है वो ज़्यादा calories burn करेगा. Now there are factors affecting BMR. Okay, जैसे age हो गया. Older people have less BMR. People who are of mid age have high BMR. Okay, age हो गया. Height, जिसकी height ज़्यादा है उसका BMR ज़्यादा होता है because they carry a lot of weight and their muscle mass is more, so they have high BMR, they burn more calories. Another thing is sex. So female burn less calories than male. It is not always, and it is not a statement और ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद एक्सेप्शनल कंडीशंस में फीमेल ज़्यादा बर्न करती है मेल से कैलोरीज, बट नॉर्मली मेल बर्न्स मोर कैलोरीज दैन अ फीमेल. देन ड्रग्स, पीपल हु टेक क्लेनब्यूटेरॉल, क्लेन जिसको बोलते हैं, DNP, these drugs burn more calories. Okay, these drugs, people who take these drugs have higher BMR. Then comes thyroid hormones. जिसको hyperthyroid है उसका BMR कम होगा, जिसको hypothyroid है उसका BMR ज़्यादा होगा. Then is state of nutrition. अगर आप डेफिसिट में हो तो आप तो आपका BMR कम होगा. अगर आप सरप्लस में हो तो आपका BMR हाई होगा. Then is phases of menstrual cycle. There are two phases, follicular and luteal. Luteal phase में females का progesterone hormone ज़्यादा होता है, तब a female burn more calories, okay, in her luteal phase. ठीक है, तब उसका BMR ज़्यादा होता है. So these factors are very important to know when you give a diet plan to a client. When you make a diet plan for your client, you should know these phases of high BMR. Non-exercise activity thermogenesis, NEAT. Okay, it simply means कि things that we do without exercise, जिससे कैलोरीज बर्न होती है, उसको NEAT बोलते हैं. Okay, NENAT comes under NEAT. Okay, NENAT is non-exercise non-activity thermogenesis. NEAT में क्या आता है, जैसे walking, cooking, steps, going for work, cleaning, shopping, all these comes under NEAT. वहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे बट एक्टिविटी सम काइंड ऑफ कर रहे हैं, तो वो NEAT में आता है. NENAT में आता है नॉन एक्सरसाइज नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. मतलब जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तब भी मैं कैलोरीज बर्न कर रही हूँ. मैं मेरे हैंड मूवमेंट्स है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस है, उससे भी मैं कैलोरीज बर्न कर रही हूँ. सो दीज थिंग्स कम अंडर NENAT. ओके, नॉन एक्सरसाइज नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस.
Then comes your eat. Exercise activity thermogenesis. It simply means things we do during exercise by which we burn calories are exercise activity thermogenesis. Okay. Now लोग हमेशा पूछते कि कौन सी एक्सरसाइज करे यार जिससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो. तो सिंपल आंसर है कोई भी एक्सरसाइज जो इंटेंस हो उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी. ठीक है. अभी देर आर trackers like watches where you track the calories, so these are usually overestimated calories. वो accurate नहीं होती, but these are good things to daily basis पे आपकी कितनी calories बर्न हो रही है वो आप track कर सकते हो. So that can be helpful in that way, but those are not the accurate calories that you burn. So the next comes thermic effect of food. Calories burned while digestion, absorption and disposal of nutrients. Okay. सो हर फूड को एक थर्मिक इफेक्ट होता है. कार्ब्स का है 5 to 15% ऑफ द कैलोरीज कंज्यूम्ड. प्रोटीन का होता है 20 to 35%. फैट्स का होता है 5 to 15% एंड अल्कोहल का सेम एज प्रोटीन होता है. ओके. सो हमेशा आप देखोगे कि पीपल यूजुअली ट्राई टू टेल यू ईट हाई प्रोटीन डाइट. इट इज़ बिकॉज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड थर्मिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन इज हाई. एंड देर आर पीपल हु से कि यार मुझे ना प्रोटीन खा के ना पिम्पल्स आ रहे हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, बहुत ऑल दी स्टेटमेंट्स. सो बेसिकली इट इज़ नॉट दैट. ओके. इट्स जस्ट दैट प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हाई होता है और वो जल्दी अब्जॉर्ब होता है, तो इसके लिए इट ऑब्वियसली इट प्रोड्यूसेस हीट. सो इट्स नॉट दैट बॉडी में हीट बढ़ गया, इट्स जस्ट दैट द प्रोटीन यू आर ईटिंग हैज़ हाई थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. सो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है. ये सब मिला के हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है. मतलब TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू BMR प्लस नीट प्लस TEF प्लस EAT. ओके. ये सबको मिला के हमारा एनर्जी आउटपुट होता है. मतलब हम कैलोरीज जो बर्न करते हैं, दैट इज अ टोटल डेली एनर्जी expenditure. Okay. Yeah. So now we know how to find our total daily energy expenditure and all these things. We know how we burn our calories. Okay. Now how to actually find calories. Okay. अगर आपको किसी को या अपने आप को अगर आपको जानना है कि हम कितने कैलोरीज कंज्यूम करें, तो मैं उसका जवाब भी देने वाली हूँ. ओके. अगर आपको कैलोरीज कितनी कंज्यूम करनी चाहिए ये आपको जानना है, तो आपको सबसे पहले आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जाननी होगी. ओके. मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब आपका जो कैलोरी इनपुट है उतना ही आपका कैलोरी आउटपुट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज. मतलब आप वेट लूज भी नहीं कर रहे हो, आप वेट गेन भी नहीं कर रहे हो, आपका वेट मेंटेन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज. अभी हम कोई कैलकुलेटर नहीं है या हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है कि हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करें. सो ऑलवेज द मेंटेनेंस कैलोरीज आर एस्टिमेटेड. ओके. आप एक कैलोरीज अगर एक कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो कर रहे हो और आपका वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, तो दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज. अभी मेंटेनेंस कैलोरीज डे टू डे चेंज हो सकती है. जैसे आज मैंने कुछ काम नहीं किया, आज मैं बस घर पे बैठ के टीवी देख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बेड में हूँ, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होगी. पर एक दिन ऐसे हुआ कि मुझे पूरा दिन काम करना है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे काम को जाना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे कार्डियो करना है, तब मेरी कैलोरीज चेंज हो सकती है, मेंटेनेंस कैलोरीज. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एस्टिमेट अ नंबर ऑफ कैलोरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपका जो वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज. अभी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करने के लिए हमें BMR फाइंड करना है. BMR आप BMR एक्चुअली आप बहुत सारे इक्वेशंस से फाइंड आउट कर सकते हो, बट देर आर 2 इक्वेशंस आई वुड लाइक टू टेल यू. रिवाइज्ड हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन, इट इज यूजुअली फॉर ओबीस पीपल. ओके. दिस इज वन इक्वेशन एंड सेकेंड इज म्यूलर्स इक्वेशन. ये थोड़ा एक्यूरेट इक्वेशन है क्योंकि इसमें फैट मास और लीन बॉडी मास यूज होता है calculations में. So I will give you both the equation to both the equations and you can choose whatever fits you. Revised Harris-Benedict equation for men is
88.362 plus 13.397 into body weight plus 4.799 into height in centimeters minus 5.677 into age. For women, 447.593 plus 9.247 into body weight plus 3.098 into height in centimeters minus 4.330 into age. This is your revised Harris-Benedict equation. Now I'll tell you Mueller's equation. Mueller's equation is 13.587 into lean body mass plus 9.613 into fat mass plus 198 into gender minus 3.351 into age plus 674. अभी ये मैं देख के बोल रही हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक टू डू हार्ड वर्क, आई लाइक टू डू स्मार्ट वर्क. यू डोंट नीड टू टेक एवरी टाइम राइट, यू नो, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हो और फटाक से फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, अभी म्यूलर्स इक्वेशन में जेंडर यूज़ हुआ है, तो मैन के लिए 1 है, फीमेल के लिए 0 है. ओके, अब लीन बॉडी मास कैसे फाइंड करना है? लीन बॉडी मास इज बॉडी वेट माइनस फैट मास, और फैट मास कैसे फाइंड करना है? बॉडी वेट इनटू बॉडी फैट परसेंटेज. ओके, सो दीज आर द 2 things you need to know, and guys use calculators and it will be very easy. अभी हमको मिल गया है BMR. Okay, now to find maintenance calories we need BMR and we need activity factor. हर एक इंसान का एक्टिविटी अलग होता है, ठीक है. सो देर आर लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल जिसके ऊपर एक्टिविटीज उनके अलग होते हैं. सेडेंट्री का फैक्टर है 1.1, लाइटली एक्टिव का फैक्टर है 1.3, मॉडरेटली एक्टिव का फैक्टर है 1.5 एंड वेरी एक्टिव का फैक्टर है 1.7. दीज आर जस्ट एस्टिमेशंस, so you can use this. Now how to know our estimated maintenance calories? BMR into activity factor. Okay, that's your maintenance calories. अब हमें मिल गई है maintenance calories. एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि 2000 calories are my maintenance calories. Okay, now my goal is to do fat loss. So what I'll do is, फैट लॉस के लिए क्या करना है? हमें कैलोरी डेफिसिट जाना है. मेंटेनेंस कैलोरी से हमें कैलोरीज कम खानी है, तो ही हमारा फैट लॉस हो जाएगा, ठीक है. तो मेंटेनेंस कैलोरीज मेरी 2000 है, तो मैं स्लोली मेरे कैलोरीज रिड्यूस करूंगी. मैं 2000 से 1000 पे नहीं जाऊंगी. मैं 2000 से सपोज 1800 करूंगी, फिर स्लोली 1600 करूंगी, फिर 500 करूंगी. ऐसे मैं स्लोली उसको रिड्यूस करते जाऊंगी. ओके, अभी ये तो कैलोरी इनपुट हो गई, ठीक है. डेफिसिट में मेरे वर्कआउट्स और मेरे एक्टिविटी फैक्टर से भी डेफिसिट जा सकती हूँ. जैसे मैंने मेरे स्टेप्स इंक्रीज किए, ओके, मैंने मेरा वर्कआउट इंक्रीज किया. ओके, दैट कैन ऑल्सो बी एग्जाम वर्कआउट में कार्डियो भी आता है, वो मैंने इंक्रीज किया, तो उससे भी मेरा डेफिसिट हो सकता है. सिर्फ इनपुट से डेफिसिट नहीं होता. जो हम एक्सरसाइज और वर्कआउट और स्टेप्स और जो भी कर रहे हैं, उससे भी हमारा कैलोरी डेफिसिट हो सकता है. ओके, सो दीज बोथ थिंग्स नीड टू बी इन प्लेस फॉर इन ऑर्डर टू हैव अ डेफिसिट. अभी ये तो डेफिसिट की बात हुई. अगर मुझे मसल गेन करना है तो मैं मेंटेनेंस से थोड़ा कैलोरीज बढ़ाऊंगी, एकदम स्लाइड, जैसे 100, 1 वीक 100, सेकेंड वीक 200. मैं इसे धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ाऊंगी और देखूंगी कि मेरा एक्चुअल में फैट गेन हो रहा है या मसल गेन हो रहा है. सो दैट्स इट. नाउ यू गाइज आर रेडी टू कैलकुलेट योर ओन कैलोरीज, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. आई होप यू लर्न फ्यू थिंग्स. नाउ बिकॉज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि मैम कैलोरीज कैसे काउंट करें. Many people cannot afford to pay nutritionists and trainers, so why not use our social media to gain knowledge and make your own plans. So now you can calculate your BMR, your activity factor, your maintenance calories, and you know what to do, when to do deficit and surplus.
So that's it guys. अभी calories तो calculate किए, अभी macros कैसे calculate करें? For this, wait and watch my next YouTube video. Thank you so much for watching. If you like my videos, please like it, please share it to your friends who want to learn. And if you have any doubts, or if you like the video, or if you want to comment anything, please mention in the comment section below, and do not forget to share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, and do wait for my next video, that is how to calculate your macros. Thank you so much guys, lots of love, and thank you so much.